Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your chemistry teacher. I hope that you all are fine and in good health and condition. Today is the lecture number 2 of chapter number 3, and the topic of my today's lecture is discovery of electron and its properties. Students, as we have discussed in the previous lecture about the atomic theory, that what is atom, and according to the modern atomic theory, that atom is comprises of three fundamental particles, three subatomic fundamental particles, and their names are electrons, protons and neutrons. So in today's lecture we are discussing about what is electron, as electron is the negative charged particle which is present in the atom, where proton is the positively charged and neutron has no charge in it. Okay, now what is the discovery of electron? Students, study of the electrons was given by the two scientists, that is William Crookes and J.J. Thomson. William Crookes discovered the cathode rays. That what are the cathode rays? He done the discharge tube experiment, and by the discharge tube experiment he comes to know that there are some rays which are emerging from the cathode rays, and what are the properties of these cathode rays? It was done by the J.J. Thomson. This experiment was also known as the J.J. Thomson experiment for the discovery of electron, and it is also known as the discharge tube experiment, because the apparatus which we are using in this experiment is a discharge tube. Now this is on your page number 43 and 44 of your textbook. Open page number 44 of your textbook. As I told you earlier, then whenever you are receiving my lecture, you must have your books with you. Okay, this is what it is drawn in your book. This is the discharge tube, and this is the diagram from which I am going to discuss. Okay, this is a discharge tube, students. As you are seeing over here, that this is a glass tube. बेसिकली ये जो है हमारे पास स्टूडेंट डिस्चार्ज ट्यूब कहलाता है. ये डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो एक ग्लास का ट्यूब होता है. इसमें देखिए यहाँ पे आपको दो प्लेट्स सी नज़र आ रही हैं. दीज मेटल प्लेट्स आर नोन एज इलेक्ट्रोड्स. द मेटल प्लेट विच इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज़ नोन एज द एनोड, वेयर द metal plate which is connected to the negative terminal of the battery is known as cathode. Here the vacuum pump is also present over here to evacuate the gas from this nozzle. Okay स्टूडेंट, रिपीटिंग वंस अगेन, आप देख रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब है. डिस्चार्ज ट्यूब में दो मेटल प्लेट्स नज़र आ रही हैं. पहली को हमने पॉजिटिव से अटैच किया तो वो एनोड बन गई, दूसरी को नेगेटिव से अटैच किया तो वो कैथोड बन गई. ये ग्लास ट्यूब है. ये डिस्चार्ज ट्यूब बिल्कुल वैसे ही डिस्चार्ज ट्यूब होती है स्टूडेंट. जब पुराने ज़माने के टेलीविजन्स होते थे उनके अंदर जो पिक्चर ट्यूब होती थी ना, बेसिकली ये वही चीज़ है, ये वही पिक्चर ट्यूब है, और ये इसी तरह की शेप की होती थी वो पिक्चर ट्यूब जो पुराने ज़माने के हमारे जो टीवी और टेलीविजन्स वगैरह होते थे उसमें होता था. अब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किस तरह से किया गया, देखिए विलियम क्रूक्स और जे.जे. थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था. उसके बाद उनको ये डिस्कवरी जो है वो मिली थी, और ये कैथोड रेज जो मिले थे. सबसे पहले उन्होंने स्टूडेंट क्या किया कि उन्होंने ये जो आपको डिस्चार्ज ट्यूब नज़र आ रहा है, इसमें उन्होंने प्रेशर जो है वो गैस का नॉर्मल रखा. देखिए स्टूडेंट, जो भी हर मैटर, हर एलिमेंट, कोई भी गैस जो भी इस दुनिया में मौजूद है उसके ऊपर कोई ना कोई एक प्रेशर मौजूद है, जिसको हम नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. तो जब हमने नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा और यहाँ पे उन्होंने हाई वोल्टेज सोर्स नहीं बल्कि लो वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया था, और जैसे उन्होंने बैटरी ओपन किया तो उनको कोई रिज़ल्ट नज़र नहीं आया. उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस वैक्यूम पंप से जो गैसेस इसके अंदर मौजूद थी उसको रिड्यूस करना शुरू किया, यानी उसको इवैक्यूएट करना शुरू किया, और उसको वो इवैक्यूएट करते गए अप टू 0.001 ATM तक. यानी तकरीबन के तकरीबन मोस्ट ऑफ द गैस उन्होंने क्या की, इवैक्यूएट कर ली. सिर्फ थोड़े बहुत पार्टिकल्स जो हैं वो इसके अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उन्होंने रहने दिए. उसके बाद क्या किया, उन्होंने अगेन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, लेकिन उनको कोई रिज़ल्ट सामने नज़र नहीं आया. उसके बाद उन्होंने थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या किया कि उन्होंने बहुत हाई सोर्स ऑफ बैटरी जो है ना वो यहाँ पे लगाई. अबाउट 10,000 और 20,000 किलो वोल्ट्स, 10,000 और 20,000 वोल्ट्स की बैटरी जब उन्होंने यहाँ पे लगाई, और उसके बाद अगेन उन्होंने क्या किया था, वैक्यूम यहाँ पे अप्लाई किया हुआ था, वही 0.001 ATM का. जब उन्होंने
बैटरी को जब ऑन किया तो उन्हें क्या नज़र आया स्टूडेंट्स, उन्हें लाइट ट्रेवल करती नज़र आई दैट वाज इमर्जिंग फ्रॉम द कैथोड एंड ट्रेवलिंग टूवर्ड द एनोड। यानी कोई ऐसी लाइट थी जो कि ट्रेवल कर रही थी कैथोड से एनोड की तरफ। उन्होंने इस रेज़, इस लाइट का नाम क्या रखा, कैथोड रेज़, बिकॉज दे आर इमर्जिंग फ्रॉम द कैथोड एंड दे आर ट्रेवलिंग टूवर्ड द एनोड। सो दिस इज़ द बेसिक एक्सपेरिमेंट। उसके बाद उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि उन्होंने इस डिस्चार्ज ट्यूब में डिफरेंट टाइप की गैसेस को फेडअप किया। फॉर एग्जांपल नियॉन गैस ली, हीलियम ली, हाइड्रोजन ली, ऑक्सीजन ली, काफ़ी गैसेस को, और उसका प्रेशर क्या रखा, स्लो ही रखा। एवरी टाइम व्हेन ही परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ही फाउंड द सेम रिजल्ट दैट देयर आर लाइट अपीयरिंग फ्रॉम द कैथोड एंड दे आर ट्रेवलिंग टुवर्ड द एनोड। सो द रिजल्ट वॉज सेम। नाउ द कंक्लूजन इज ड्रॉन दैट देयर आर सम रेज विच आर emerging from the cathode, they are moving toward the anode. Now what is the properties of these cathode rays? These properties of cathode rays was discovered by the J.J. Thomson, and the next topic of my today's lecture is properties of cathode rays. What are the properties of cathode rays? These are present on the page number 44 of your textbook. देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपकी बुक पे लिखी हुई है दैट इज़ दे कास्ट शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड इन देयर पाथ टूवर्ड द एनोड प्रूविंग दैट दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस। प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करते हुए उन्होंने सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते रहे और उस तरह से उनको जो वो कैथोड रे की प्रॉपर्टीज़ पता लगती रहीं। सबसे पहला उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया कि उन्होंने एक मेटल का एनोड या मेटल की कोई चीज़ जो है उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब के बिल्कुल मिडिल में रखी। यहाँ से कैथोड रेज आ रही हैं, एज आई टोल्ड यू कि एक लाइट रेज होती है जो कि इनविजिबल होती है। जैसे ही मेटल के ऊपर डिपॉजिट हुई, मेटल के ऊपर इन्होंने स्ट्राइक किया, इन्होंने क्या किया, शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया ऑन द अदर साइड ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। रिपीटिंग वंस अगेन, जैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्होंने कैथोड रेस के पाथ के बीच में रखा तो इनको ऑन दी अदर साइड यानी कैथोड से अपोजिट साइड के ऊपर इनको एक शेडो मिला। तो शेडो किस चीज़ का फॉर्म होता है स्टूडेंट, जो भी चीज़ स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, यानी जब कभी भी किसी भी तरह की कोई भी लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी वो तभी शेडो प्रोड्यूस कर सकती है, अदरवाइज़ वो शेडो प्रोड्यूस नहीं करेगी। जैसे सनलाइट है, जैसे कैंडल की लाइट आपने देखा होगा, जब आप उसमें अपने शेडो को लेकर आते हैं, यानी उस लाइट के बीच में अगर आप अपना हाथ या कुछ लेकर आते हैं तो आप देखेंगे ऑन दी अदर साइड आपको शेडो ऑब्टेन होता है। तो शेडो कब मिलता है, जब कोई भी लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। तो यहाँ पर उनका कंक्लूजन क्या निकला कि कैथोड रेज कास्ट शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ प्रूविंग दैट दे ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट परफॉर्मेंस उन्होंने, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया कि देखिए यहाँ पे एक छोटा सा लाइट पैडल व्हील, पैडल्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये पैडल व्हील लगाया। अगेन कैथोड रेज जब इस पैडल व्हील से आके टकराएं तो ये पैडल व्हील क्या हो गया, रोटेट होना शुरू हो गया, यानी घूमना शुरू हो गया। अब स्टूडेंट कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको हमें हिलाना होता है तो हमें उसे किसी चीज़ से स्ट्राइक करना पड़ता है, यानी कोई ना कोई मटेरियल से स्ट्राइक करना पड़ता है हमेशा। जैसे अगर मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लूँ, आप पेपर लें, पेपर के ऊपर अगर आप हवा को भी पास करेंगे तो आप देखेंगे पेपर जो है वो हिलना शुरू हो जाएगा, यानी अपनी जगह से डिस्प्लेस होना शुरू हो जाएगा। क्यों होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एयर के अंदर भी गैसेस के पार्टिकल्स हैं, वो क्या करते हैं, पेपर से स्ट्राइक करते हैं और उसको अपनी जगह से क्या करते हैं, हिला देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब कैथोड रेज इस लाइट पैडल व्हील के ऊपर टकराई तो ये घूमना शुरू हो गया, जिनसे हमें क्या पता लगा कि इन कैथोड रेज के अंदर कोई ना कोई पार्टिकल मौजूद है। नाउ योर प्रॉपर्टी इज दे कॉज अ लाइट पैडल व्हील टू रोटेट showing that they are material particle, यानी इनके अंदर क्या है, कोई ना कोई मटीरियल पार्टिकल मौजूद है इन रेस के अंदर। क्लियर। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज, आप देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, These ray although invisible cause some material to glow or produce fluorescence। वैसे अगर आप देखें इस ट्यूब में आपको लाइट एज सच नज़र नहीं आई, इनविजिबल है, लेकिन जब ये किसी भी वॉल से या स्क्रीन से टकरा रही हैं तो ये स्क्रीन को क्या कर रही हैं, ग्लो प्रोड्यूस कर रही हैं, चमका रही हैं, फ्लोरेसेंट है, चमकीला, ब्राइट है, तो वो क्या कर देती है, उस चीज़ को चमकाना शुरू कर देती है, बिल्कुल ऐसे ही ग्लो करना शुरू कर देता है जैसे हमारा बल्ब होते हैं, बल्ब ग्लो करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके
से जब कैथोड रेस किसी भी चीज़ के ऊपर टकराती हैं तो वो उसको क्या करती हैं, ग्लो प्रोड्यूस कर देती हैं। जबकि ये खुद रेस कैसी होती हैं, इनविजिबल। जैसे आपने देखा होगा लाइट है वैसे इनविजिबल है, जब हमारी लाइट स्ट्राइक करती है तो वो क्या होता है, उसको ग्लो करना शुरू कर देता है। बिल्कुल इसी तरीके से दीज रेज ऑल्दो इनविजिबल, नज़र नहीं आती हैं, लेकिन जब किसी चीज़ के ऊपर टकराती हैं तो उसको ग्लो प्रोड्यूस कर देती हैं। नेक्स्ट हमारे पास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कैथोड और एनोड नज़र आ रहे हैं। कैथोड इज़ नेगेटिव, एनोड इज़ पॉजिटिव। अब कैथोड रे की प्रॉपर्टी कैसी है, यानी कि इसके ऊपर चार्ज कैसा है, तो उसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि इन बिटवीन द डिस्चार्ज ट्यूब दे ऑल्सो प्रोड्यूस सम इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इनके कैथोड रे के पाथ के बीच में ही इन्होंने क्या किया, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दी। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने का क्या मतलब होता है कि प्लस और नेगेटिव चार्जेस हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा दिए। तो साइंटिस्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया कि कैथोड रेज जो कि कैथोड से एमर्ज हो रही हैं वो एनोड की तरफ जाने के बजाय उस तरफ डिफ्लेक्ट हो गई जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी जिस जगह पॉजिटिव चार्ज है, आपको नज़र आ रहा होगा ये ग्रीन लाइट देखें कहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रही है, मुड़ रही है, उस तरफ मुड़ रही है जहाँ पे प्लस साइन है। इसका क्या मतलब निकलता है स्टूडेंट्स, अगर आपको चार्जेस के बारे में पता हो तो आपने मतलब साइंस में पढ़ा होगा कि लाइक चार्जेस repel each other whereas unlike charges attract each other। तो पॉजिटिव की तरफ जो चीज़ आ रही है इट मीन्स के उसके अपने ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होगा तभी वो पॉजिटिव की तरफ आएगा। तो अब इससे हमें क्या पता लगा कि कैथोड रे की प्रॉपर्टी क्या है, दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड देयर फोर्थ प्रॉपर्टी इज दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड showing that they are negatively charged particle. Now the fifth property is the charge to mass ratio of cathode particle is 1.7588 exponent 8 coulombs per gram, that is same for all electron regardless of any gas in the tube। अब ये थोड़ा टिपिकल है, 9th के लेवल पे हम इसको इतना डिस्कस नहीं करते इतना डिटेल में, क्योंकि हम ये कैलकुलेशन नहीं बताते हैं। बस सिंपल याद रखिए कि कैथोड पार्टिकल के ऊपर कोई चार्ज होगा, कैथोड पार्टिकल का कोई मास होगा, जब हमने उनको आपस में डिवाइड किया तो वैल्यू क्या निकल कर आई, 1.7588 एक्सपोनेंट 8 कूलम्स पर ग्राम। और ये हर तरह की गैस के इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम रही, कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक, द नेक्स्ट वन इज़ and the last, they can produce mechanical pressure indicating they possess kinetic energy, यानी कि ये मैकेनिकल प्रेशर